Good morning, students. We were studying chapter 6 life processes. अभी तक आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा थोड़ा. Which are the life processes? 4 processes. Nutrition, types of nutrition. Nutrition in plants पढ़ा आपने through photosynthesis. And nutrition in amoeba पढ़ा आपने. Pseudopodia and all that. Okay. Now I hope you have studied that well. And now we will go on further. Nutrition in human beings, a very important topic. How does nutrition happen in human beings? So all of you know what is nutrition. It is intake of food and using it to body growth and gaining energy and repairing of tissues. That's all. So nutrition. In plants, you studied that nutrition happens in green leaves by chlorophyll, amoeba by pseudopodia. So how does in humans happen? It happens through digestive system. In human beings, nutrition occurs through digestive system. So this what a figure you are seeing, this is a digestive system. So you intake food through your mouth. This is your buccal cavity. 1 minute please. Yes. Sorry for the interruption. This is your digestive system. Yes. And this is your mouth. Okay. Buccal cavity or mouth. You intake food through buccal cavity. It includes teeth and tongue. 4 types of teeth, you know, incisors, canines, molar, premolar, which are used to chew food. Okay. Through mouth. Okay. Food goes through this tube you are seeing, this long tube. This tube is called esophagus. Esophagus, O-E-S-O, not E-S-O, O-E-S-O, esophagus. This is esophagus. After esophagus, food enters stomach. You know very well, stomach. This is your stomach. Stomach is present on left hand side of body, not here, not in the middle. You think the stomach is in the middle of our body, but stomach, that is called abdomen. Abdomen is different. This is stomach. Stomach is present on left hand side. It is a tube shaped. Okay, so this is your stomach. After stomach, you can see that the food is passing through here like this. This is small intestine, which you are seeing very coiled. It is very long, but since this is coiled, so it looks short. Its length is longer than large intestine. So the food is here, food particle is here, and it goes like this. Okay, so after small intestine, you can see small intestine के यहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड एंटर हो रहा है इधर लार्ज इंटेस्टाइन में. ये जो ग्रीन ट्यूब दिख रही है आपको, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. 1 point to note that large intestine is not large actually. Small intestine is longer than large intestine. Then why do we call large intestine? Because its diameter is more than that of small intestine. You can see large intestine broad है, काफ़ी डायमीटर ज़्यादा है इसका, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है. सो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए उसको स्मॉल बोलते हैं, बट इसकी लेंथ लार्ज से बहुत ज़्यादा होती है और ये कोल्ड होती है. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड लास्ट में excretion, through excretion, rectum and anus. You are seeing another 2 organs, important organs, liver, this liver. Okay, and ये जो आपका लीफ जैसा दिख रहा है, लीफ कोई नहीं, पेनक्रियाज है. दिस इज ऑल्सो पेन ऑर्गन, ग्लैंड. दिस 2 आर important glands which also have important part in digestion. So let's see what is happening in each part. देखिए, इन माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? टीथ, टंग तो होते हैं, उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सलाइवा. जो लार होती है सलाइवा, उसका रोल होता है सबसे ज़्यादा डाइजेशन में. तो डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल होता है? सलाइवा में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में. उसी तरीके से एक ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड. तो इस सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं
तो सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं एंजाइम्स। डाइजेशन में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फंक्शन होगा डाइजेशन का वो होगा थ्रू एंजाइम्स। एवरी पार्ट हैज़ इट्स ओन एंजाइम्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में भी एंजाइम्स होते हैं। उस समय एंजाइम का नाम होता है अमाइलेज। अमाइलेज, AMYLASE, अमाइलेज। सो अमाइलेज एक एंजाइम होता है सलाइवा में। ओके, दैट एंजाइम और सलाइवा breaks down starch. What is starch? The food you are eating, take it as starch. That saliva breaks starch into simpler carbohydrate. Starch is a carbohydrate, okay, and it is a complex carbohydrate. So the saliva breaks this starch into simpler carbohydrate, which is glucose or maltose. Okay, so in salivary glands, amylase enzyme converts starch into maltose. आफ्टर माउथ, देखिए फूड इज गोइंग थ्रू ऑसिफेगस, ठीक है। फूड पाइप, जो इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, एसिफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप के साथ एक एयर पाइप भी होता है। एयर पाइप देखिए, एयर पाइप इधर होता है अलग से, ये एयर पाइप यहाँ पर होगा, ठीक है। उससे पहले ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पार्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो आप फूड इनटेक कर रहे हैं माउथ से, यहाँ से एयर आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो एयर पाइप में चली जाएगी और फूड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। ये जो पैसेज होता है बीच वाला, ये कॉमन होता है। और इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है कि फूड पाइप में जाएगा और एयर पाइप में जाएगी, ये चीज़ आप देख रहे हैं, एपिग्लोटिस, EPIGLOTTIS, एपिग्लोटिस जो होता है, that transfers food into food pipe and air into air pipe, ठीक है। एपिग्लोटिस के बाद फूड पाइप एयर पाइप डिवाइड हो जाते हैं। ओके, सो ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस में का फंक्शन क्या होता है? ईसोफेगस का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये फूड को पास कराता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यू विल स्टडी लेटर, डोंट वरी। आफ्टर दैट food is entering in this stomach. This is your stomach. स्टमक जो आप बोलते हो पेट, ठीक है। आपको लगता है पेट में जो है खाना पचता है, बट यस इट इज़ ट्रू, स्टमक में डाइजेशन होता है, बट थोड़ा सा। द मेन डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर डाइजेशन होता है। स्टमक में किस जगह डाइजेशन होता है? पहले देखिए स्टमक में होता क्या क्या है। ये जो स्टमक है आपका, ये वाला स्टमक, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे मेन चीज़ होती है गैस्ट्रिक जूस, वन मिनट, गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ चीज़ें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है HCl, विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो अब आपसे पूछा जाए what might be the pH of gastric juice, less than 7 or more than 7? You know that pH of acids is less than 7, so gastric juice has HCl, so gastric juice pH कितना होगा? less than 7. Actual pH is about 1 to 2, बहुत कम होता है इसका pH, 1-2 की रेंज में होता है, ठीक है। सो गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? स्टमक में। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अलावा होता है म्यूकस, MUCUS, म्यूकस, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो एसिड का पहला फंक्शन होता है जो फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनको किल करना। सो इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। कौन? HCl, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, बिकॉज ऑब्वियसली HCl इज एसिडिक, सो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। किसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है? आपको मैंने बताया कि हर पार्ट में डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम होगा, ठीक है। सिमिलरली स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो इस एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए एसिडिक। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ होते हैं जो बेसिक में काम करते हैं। तो इस जो एंजाइम है ये पेप्सिन, इसको चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट। और वो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन देगा?
HCl। तो HCl का दूसरा फंक्शन हुआ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज यस म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, देखिए म्यूकस कहाँ पर होता है पहले ये देखिए, म्यूकस इज प्रेजेंट ऑन द वॉल्स, ये जो वॉल्स दिख रही है ना ऑफ स्टमक, कॉर्नर्स में होता है। तो कॉर्नर में होता है, इसका मतलब ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। एसिड जो होता है ऑब्वियसली हार्मफुल होता है, इट कैन हार्म द वॉल्स ऑफ स्टमक, ओके, corrode the walls. So mucus prevents, mucus protects the stomach, okay. So this is stomach. I am giving you just a basic introduction, you will read it about later in very detail, you will understand, okay. So the next thing is, अब आपको पता है स्टमक के बाद फूड कहाँ पर जाता है, सोचिए आप, स्टमक के बाद फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत कुछ होता है। आप देखिए क्या क्या होता है, देखिए ये जो आपको स्टमक के बाहर जो ट्यूब दिख रही है, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम स्फिंक्टर ट्यूब कहते हैं, स्फिंक्टर ट्यूब, स्फिंक्टर, SPHENTCTER, स्फिंक्टर ट्यूब होती है जो बीच का गैप होता है, विच जॉइंस द स्टमक टू इंटेस्टाइन। तो आपसे पूछा जाए कौन सी ट्यूब जो है स्टमक को और इंटेस्टाइन को अटैच करती है, स्फिंक्टर ट्यूब होती है, ठीक है, ये छोटी सी यहाँ पर बीच में होती है स्फिंक्टर ट्यूब, ठीक है। स्फिंक्टर ट्यूब के बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडोनम, ड्यूडोनम, आपको ये नाम याद ना रहे कोई बात नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, सिर्फ प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है सिर्फ स्टमक में, और वो करता है पेप्सिन, ठीक है। फूड में जो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उन सबको डाइजेस्ट करना है। अभी तक सिर्फ क्या डाइजेस्ट हुआ है, अभी तक डाइजेस्ट हुआ है प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है माउथ में, ठीक है, और प्रोटीन हुआ है स्टमक में। उसके बाद आप देख सकते हैं, यस, सो हम कहाँ पे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए डाइजेशन किस किस का बचा हुआ है, प्रोटीन का हुआ है थोड़ा स्टमक में, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा माउथ में हुआ है। अब देखिए बाकी जो भी डाइजेशन बचा हुआ है सब कुछ सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है लीवर, ये लीवर दिख रहा है, आपने बहुत सुना है लीवर लीवर, ये होता है लीवर, और ये पैनक्रियाज आपको दिख रही है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, दीज टू ग्लैंड्स हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। कैसे हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, लीवर अपना जूस बनाकर स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है, ठीक है, और पैनक्रियाज अपना जूस बनाकर इसको दे देती है, ठीक है, और वहाँ पर फिर डाइजेशन होता है। लीवर एक जूस बनाता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, अभी सिर्फ आप समझिए, याद आप बाद में करना, सब याद हो जाएगा, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस जो है वो अपना कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भेजेगा, आपको एक ट्यूब दिख रही है, यहाँ से भेज देगा, इस ट्यूब को कहते हैं बाइल डक्ट, डक्ट मीन्स ट्यूब, और बाइल बाइल जूस बाइल डक्ट से लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर देगा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन ये चीज़ क्या है, छोटी सी ये चीज़ है गॉल ब्लैड, यस, दिस इज़ गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, ब्लैडर जो भी होता है आपके बॉडी में वो क्या है, स्टोर करके रखता है एनी जूस और एनीथिंग अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। सो लीवर स्टोर्स बाइल जूस इन गॉल ब्लैडर, याद रहेगा, लीवर स्टोर्स बाइल जूस इन गॉल ब्लैडर, यहाँ पर बाइल जूस को सीक्रेट रखता है जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन को इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। हाँ, और ये बाइल डक्ट हो गई। ये पैनक्रियाज है, ये आपको ब्यूटीफुल सी पैनक्रियाज दिख रही है, इसमें क्या होगा, ये अपना जूस, इसके जूस का नाम क्या है, कुछ नहीं होता, पैनक्रियाज जूस ही होता है, पैनक्रियाटिक जूस ही होता है। पैनक्रियाटिक जूस भी अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करेगी, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई है, यहीं से स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए लीवर ने दिया बाइल जूस और पैनक्रियाज ने दिया पैनक्रियाटिक जूस। अब लीवर बाइल जूस के अंदर होता है एंजाइम, ठीक है, हाँ सॉरी, लीवर में नहीं, पैनक्रियाज, सॉरी, पैनक्रियाज में होता है एंजाइम, लीवर में बाइल जूस होता है। बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस आपने पढ़ा
गैस्ट्रिक जूस तो होता है एसिडिक और बाइल जूस होता है एल्कलाइन या फिर बेसिक। बाइल जूस कैसा होता है? एल्कलाइन। अब एल्कलाइन क्यों होता है? बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम हैं उनके फंक्शन करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए? बेसिक एल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है बाइल जूस का फैट। फैट का क्या करेगा? फैट का डाइजेशन नहीं, फैट का डाइजेशन नहीं, फैट को ये इमल्सीफाई करेगा। इमल्सीफाई करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक कर देना। सो फैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट फैट। सो फैट को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। वो कौन करता है? लीवर। कैसे करता है? बाइल जूस से। ठीक है। तो बाइल जूस ने क्या किया? दो काम किए। पहला काम किया फैट को तोड़ दिया, दूसरा काम किया मीडियम एल्कलीन कर दिया फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देखिए क्या करेगा। पेनक्रियाज में होते हैं एंजाइम और वो एंजाइम फंक्शन करेंगे टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को कैसा मीडियम चाहिए? एल्कलाइन। और वो एल्कलाइन मीडियम कहाँ से मिल रहा है? बाइल जूस से। सो पेनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। पेनक्रियाज में एंजाइम होते हैं, देखिए जो भी कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा उस एंजाइम का कॉमन नाम होगा एमाइलेज। AMYLASE। अमाइलेज ये है कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम। ठीक है। प्रोटीन का जो भी एंजाइम होगा, आपने स्टमक में तो पढ़ लिया पेप्सिन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम होगा ट्रिप्सिन। TRYPSIN, ट्रिप्सिन। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम होगा ट्रिप्सिन। ठीक है। और कौन सा एंजाइम बचा? फैट का एंजाइम। फैट को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा? लाइपेज। LIPASE, लाइपेज। ठीक है। ये तीनों एंजाइम डाइजेस्ट कर देंगे पूरा फूड। तो ये एंजाइम कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियाज से। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, ड्यूडोनम पार्ट जो है, ड्यूडोनम, यहाँ पर कुछ डाइजेशन, ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ड्यूडोनम में। ठीक है। उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले पार्ट हैं, इसको कहते हैं इलियम जेजेनम। जेजेनम और इलियम, कोई बात नहीं, आप स्मॉल इंटेस्टाइन ध्यान रखो। स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या होगा? जो भी बचा कुचा डाइजेशन है वो भी पूरा हो जाएगा। अब जैसे पैनक्रियाज ने जूस दिया अपना पैनक्रियाटिक जूस, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका एक अपना भी जूस होता है। ये सिर्फ लेता नहीं है, इसका खुद के पास भी है कुछ। ठीक है। उस जूस का नाम है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टिनल जूस सिंपली। ठीक है। इंटेस्टिनल जूस होता है ये। इस इंटेस्टिनल जूस में भी वही एंजाइम होते हैं। ठीक है। जो कि अमाइलेज और जो लाइपेज होते हैं, जो बाकी डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो डाइजेशन जो है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रहा है डाइजेशन। ठीक है। अब ये डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट हो गया। फूड डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाएगा फूड? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में तो रह नहीं सकता ना, फूड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है। पूरी बॉडी में फूड को ले जाना है। अब वो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? आपको बताया था कल की क्लास में, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड एयर। ठीक है। तो ब्लड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड। सो ब्लड में कैसे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ही भेजेगा। कैसे? ऐसे देखिए, VILLI, क्या लिखा मैंने? VILLI, विली। विली होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी, ये होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक शेप्स होती हैं इनकी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय विली। ओके। दे एक्ट लाइक अ वे बिटवीन इंटेस्टाइन एंड ब्लड। इंटेस्टाइन और ब्लड के बीच में विली होते हैं। तो ये विली जो है फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा। ठीक है। विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। आफ्टर दैट, आपको लास्ट में पता है लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर सिर्फ होता है, सब सब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, इधर होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो भी फूड में वाटर बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेज देगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू रेक्टम एंड एनस। ठीक है। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक बार आप इसकी रीडिंग लीजिए। क्या लिखा है? न्यूट्रिशन बीइंग्स टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल कुछ नहीं है, एसोफेगस जो भी है, पूरा जो माउथ से लेकर स्टमक तक जो आपका कैनल है उसको बोल रहे हैं एलिमेंट्री
which produce enzymes and break down food into smaller molecules. Main organs are mouth, esophagus, stomach, intestine, large intestine, anus. Main glands, salivary glands कहाँ होती है? माउथ में. gastric glands आपको पता है, लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. इस जो ये पीपीटी आपके पास है, आप इसे पढ़िएगा अच्छे से. इन द माउथ आपको पता है, बता दिया है मैंने, जो भी कुछ होता है स्टार्च इनटू शुगर. ओके. In the stomach, gastric glands produce gastric juice, enzyme pepsin, HCl and mucus. Pepsin breaks down proteins. HCl makes medium acidic, जो भी अभी तक मैंने बताया सारा. In the upper part of small intestine, duodenum जो है, food is mixed with bile. सबसे ऊपर लिखा है food is mixed with bile from liver and pancreatic juice from pancreas. Bile breaks down fats into globules. Globules means small molecules. Pancreatic juice enzyme trypsin and lipase. Trypsin breaks down proteins and lipase breaks down fat. Fat का जो digestion होगा वो कहाँ होगा? फैट का, सॉरी प्रोटीन का और फैट का दोनों का डाइजेशन थोड़ा यहाँ पर ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आगे पार्ट्स होते हैं, ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, इसमें अलग से लिखा हुआ है. आगे ग्लैंड्स एंड वॉल्स प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. यस, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा जो है न्यूट्रिएंट किस में कन्वर्ट होगा, कौन सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा. ठीक है. तो जब सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, जब सब कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक होता है हमेशा किसमें? ग्लूकोज में. सिंपल, ग्लूकोज में. फैट जो है फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में. इधर देखिए, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल. और प्रोटीन्स किस में चेंज होगा? हमेशा अमीनो एसिड में. सो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट इन डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, और प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. ओके. इसके बाद विली दिया हुआ है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ब्लड वेसल्स, इंक्रीज द सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन, ये सब आप पढ़ लेना. लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव. ठीक है. सो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझना. इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है, आप बना लेंगे. ओके.